सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। सो आज का सब्जेक्ट है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ गॉड, इजंट इट? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ। सो देवाशीष सहा। हाँ, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। शुरू करें महाराज जी? महाराज जी शुरू करें? जी जी। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी शारदं देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। I am doing the summary of the article Different Conceptions About God by Swami Jyotishananda Ji Maharaj. There are 8 sections in this article. Number 1, the search for the absolute. Right from the beginning of the civilization, we find that the man has been trying to understand the mystery of the universe. What is the cause? Is it Brahman? When are we born? Why do we live? Where is our final rest? Under whose orders are we? Who know the Brahman? Subjected to the law of happiness and misery? It is impossible to get a solution to these ultimate questions through reason alone. The sages, seers of truth, practiced meditation. In the depth of contemplation, they realized the supreme immutable, that is unchanging over time or unable to be changed, being called Brahman, who is the self-luminous power in all beings and who presides over the functions of everything from time to ego. What is the nature of this supreme being? The famous Nasadya Sukta, the hymn of creation of Rig Veda, describes the non-dual nature of Brahman as it existed before creation. Upanishads, part of Vedanta, describes the ultimate reality in terms of not this, not this. Sankhya and Vedanta are two different schools of thought interpreting the nature of ultimate reality. The two fundamental categories of Sankhya are Purusha and Prakriti. Purusha is the spirit. Prakriti is the ultimate source of all material things, including the mind and the senses. Purusha corresponds to the Jiva, individual self of Vedanta. According to both the system, the self in its real nature is pure consciousness, infinite and eternal, but owing to the ignorance, identifies itself with the mind and the body and is born again and again as living being. The non-dualistic school of Vedanta has the concept of cosmic ignorance or Maya, which roughly corresponds to the Prakriti of the Sankhya. In both the schools, knowledge based on the discrimination between the self and non-self is considered to be the only means of liberation of the jiva from its bondage. These are the common points between the Sankhya and Vedanta. But Vedanta has the concept of an ultimate reality called Brahman, which is the nature of existence, knowledge, bliss, absolute, which manifests itself as the souls and the material objects. In Vedanta, identification of gods, Vishnu, Shiva, or Devi, with the supreme godhead is Ishvara. In Sankhya, Ishvara is a special type of Purusha who is ever free and who is teacher of all teachers, but he is not the creator. The great sage Patanjali says that by devotion and self-surrender to this Ishvara, one may directly attain Samadhi. In Vedanta, the creator of this universe is called Brahman, or Hiranyagarbha is lower than Ishvara, the supreme controller. Incarnations are also often identified with Ishvara, but the Bhagavatam refuses to count Sri Krishna as one of the incarnations of God. He is none other than the supreme Godhead. Krishna's two
Bhagavan Swayam. In Krishna's stu, Bhagavan Swayam means Bhagavatva. The authority of Bhagavan is fully expressed in Krishna, not in others. Parasar Muni, the father of Vasudeva, says, Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, and all knowledge and all renunciation is called Bhagavan. This kind of identification of incarnation with the Supreme Being is found in Bhagavad Gita also. In order to distinguish Sri Krishna, Vasudeva is writing Sri Bhagavan Uvacho. He does not say Sri Krishna Uvacho, just to make it distinguished that Krishna's to Bhagavan. Sri Ramakrishna, the incarnation of recent times, said in Kashipur Garden House to Swamiji, he who was Rama, he who was Krishna, he himself is now Ramakrishna in this body, not in your Vedantic sense, according to which each soul is potentially divine, but actually so. Place of personal God in spiritual life. In the holy personality, the devotee sees a link between the finite and infinite. First, he is drawn by the wonderful charm of the personality, and then through it, he realizes the infinite. We need something to center our feelings upon, and if we do not get attracted to some holy form, some holy personality, we naturally take up some human idol and become attached to it. But in these great ones, though at first we are charmed by the human aspect, later on we find the divine in them. Here lies the necessity of worship of an incarnation. If we want to construct a building, we must find a model. In these godmen, we find that their bodies and minds are like glass cases through which shines the cosmic spirit, whereas ours is at best an iron case. Our task is to transmute, convert, transform, Sharup ko badalna, this iron case into a glass case. Through their superhuman spiritual endeavor, the godmen have shown us the way to transmute the iron case into a glass case. Even these godmen had to perfect their bodies and minds through regular spiritual practice and culture. In their case, in the superconscious is manifested through the conscious. And if we attracted by their human aspect, we will come in touch with the divine aspect in due course. Idolatry is the necessary stage. Center their feelings and emotions upon, they will become them. एक सेकंड के लिए रुक जाइए, आपकी वॉइस स्लो हो गई. Am I audible now? हाँ, अब ठीक है. Did I miss something? I mean, you could not hear something? Can I repeat? No. जी जी ठीक है. Which is the better idol? An ordinary idol of flesh and blood, or an idol which represents a higher ideal? Human idols, we do not find a higher ideal. And if we try to think of the abstract thinking is the ability to absorb information from our senses and make connections to the wider world. Idol of flesh and blood, or an idol which represents a higher ideal. In human idols, we do not find a higher ideal. And if we try to think of the abstract, flesh and blood, or idol which represents a higher ideal, human idol will not find a higher ideal. And if we try to think of the abstract becomes and remains abstract, while the human idols, the man puppets or the woman puppets, attract all our attention, become essentially real to us, and then everything else follows as a matter of fact. To the extent we are able to think of the divine. देवाशीष जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और वो
आपको जरूर दिक्कत होगी तो वीडियो बंद कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। Oh, ठीक है, okay. Am I audible now? हाँ हाँ, बढ़िया है। Can I continue? यस यस प्लीज। quickly, you're already getting late. सर महाराज जी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा जल्दी- डिलीट कर दो, जल्दी कर लो, इम्पोर्टेंट हाँ, पॉइंट कुछ। जल्दी कर लेते हैं। And in human idols we do not find a higher ideal, and if we try to think of the abstract become and remains abstract, while the human idols, the man puppet or the woman puppets, attract all our attention and become essentially real to us, and then everything else follows as a matter of fact. To the extent we are able to think of the divine in us as distinct from our personality, as distinct from this man form or woman form of ours, to that extent we will be able to think of the divine in others too, as distinct from their form, as distinct from their personality, and then we will be safe. Then we will never become slaves to any male and female puppet. The conception of the nature of the divine beings whom men seek vary with the growth in the knowledge of themselves. Sri Ramakrishna observes there are three classes of devotees. The lowest one says God is up there. That is, he points to heaven. The mediocre devotee says the God dwells in the heart as the inner controller. But the highest devotee says God alone has become everything. All things we perceive are so many forms of God. Now, we come to that change in conception of God in ancient India. Some devotees speak of him as possessing both in divine forms and attributes. They want to establish a personal relationship with him. Others speak of him endowed with infinite power and knowledge and other qualities, and think that though formless, he assumes various forms. While they take a note of the personal aspect, they particularly stress the impersonal aspect of which the former is a manifestation. Realizing him as the indwelling spirit, as a result of self-purification brought about by sincere devotion, the devotee gets a vision within himself of the same divine being he has been so long worshipping as an outside object. Then he realizes himself as the indwelling spirit, ear of ear, the mind of mind, the life of life. To him, God is now the principle immanent in all beings and things. He is merely not the God of gods, but also the true self of all, the life universal. Vedic rishis realized that ekam sat vipra bahuda badanti. After the period of Rig Veda, a revolution took place in Hinduism with regard to the symbols and the names associated with worship and prayer. Names that were once of minor importance came to be prominent in later times, and new names added to the pantheon, a group consisting of all gods. The worship of Shiva, Vishnu, Devi, the incarnations like Rama and Krishna became popular in later times. But in the midst of these striking changes, the Hindu devotee's conception of the supreme deity, his highest spiritual hopes and aspirations, his desires to seek divine aid and guidance, and his yearning for the spiritual communion have remained unchanged. With the march of time, it has been recognized with greater clarity that the impersonal principle forms the background of all personal aspects of God. And it is the source of all divine personalities, worshipped through various symbols. Indeed, according to the Advaita Vedanta, whatever be the symbol one may adopt, or the personality one may adopt to begin with, the highest goal of spiritual life lies in the ultimate experience of the impersonal, and one without a second, in which the worshipper is merged into and becomes one with the infinite. In that highest experience, all distinctions between man and God and between God and the world vanish. The one without a second alone remains. In Nirvana Shatakam, Shankaracharya, the monistic meditation negates the non-self and asserts the self. Qualified non-dualism. The devotee retains the distinction between him and the divine. He considers himself as a soul and God
as the soul of all souls, personal and impersonal aspect of divine. In Bhagavad Gita 12.5, Krishna says, greater are the difficulties of those whose minds are set on the impersonal, whose minds are attached to the unmanifest. The path of realization is full of tribulations. Worship of the unmanifest is exceedingly difficult for embodied beings. Why is the worship of formless Brahman so difficult? The first and foremost reason for this is that we humans possesses a form ourselves, and we have been habituated to interacting with forms in endless lifetimes. Thus, while striving to love God as well, if our mind has a wonderful, enchanting form to meditate upon, it can easily focus upon it and increase its attachment to the Lord. For the heights of the absolute are very hard for embodied beings to reach. Hence, the worship of and the meditation on the impersonal through the personal aspects of the and symbols has been the most popular in Hinduism in almost all forms of spiritual practice. The aspirant looks up the divine as the personal being endowed with superhuman attributes, who responds to his prayers and worship and helps him in the attaining perfection and bliss. It has been recognized more and more that formless and the impersonal is the background of all divine personalities, which are the manifestations of the immutable, unmanifested principle. Just as an ocean gives rise. Okay. Repeat it. The same thing is. Okay, then I jump this. So then I come to the form. Finish it quickly. Then I jump this. Form from God to the Godhead. The impersonal is beyond the reach of the devotee, while the personal does not satisfy his philosophic sense. Hence, the worship of personal impersonal has been the most popular in higher forms of spiritual practice. And this is true of the worshippers of Krishna, Rama, Shiva, Vishnu, Durga, and Kali. Worship of God as mother. There is nothing unnatural in worshiping God as the mother. Just as the baby is nourished by its mother, so also does God create, support, and nourish all living beings. To look upon God as mother is the most natural way. If men in the West worship God as mother, they would be less hard-hearted and sex-conscious and be more spiritual. There would be stronger family bonds and greater domestic peace. Hindu concepts of incarnations. A Hindu is free to accept any of the incarnations. Okay. Now stop it. Okay. Thank you, Maharaj. Pranam, Maharaj. You are continuing. You are not stopping. Okay, Maharaj. Very good. बहुत ज्यादा हो गया है. Very good, Maharaj. हाँ. Summary is excellent. You see, the article is very important and very about the concept of God and our idea about God. Or I would suggest that all of you must carefully read it. I give to a particular person so that he reads it, but it is for everyone. All of you kindly read this article repeatedly. You will get a clear idea about God and our concept and how to practice it, how to have devotion to God, etc. Okay? Okay, Maharaj. Okay. Now, shall we start questions? Yes, Maharaj. So, first of all, Rita. Pranam Swamiji. Yes. My question, this is a 3-4 times, and it is very clear. However, I have only one question. Swamiji. No, I have not heard it from the. Read again. Read again. This is a very important article, and I have read it about 4-5 times in order to understand why there are different conceptions about God. And this is also quoted by Thakur in many places here. In Kathamrita, he has also explained how different conceptions of God come to different people. My question, Swamiji, is that Revered Vatisharananda ji has quoted
verse 1 to 20 of Katha Upanishad. He is subtler than the subtlest, vaster than the vastest, the self seated in the heart of all beings. Kindly explain the meaning of this verse in its application to daily spiritual practice. Okay, good, very important. You see, क्या कहा है गीता में? ये क्या है? सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म भी है और महान भी है. क्या है वो? उसका है मतलब ये है, क्या है वो? ओरिजिनल याद है क्या? अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम. ये है आत्मा जो है वो अणु से भी अणु है, सटलर देन द सटलेस्ट. महतो महीयान, बड़े से भी बाहर है. और आत्मा अस्य जंतो निहितं गुहायाम, हमारे हृदय में भी विद्यमान. तो आत्मा या परमात्मा के 3 कैरेक्टर बताए. आर यू लिसनिंग शिवानी? अब ये रीता, यू आर लिसनिंग? Yes, Swamiji. Yes, I am listening, Swamiji. Now see, that means अनोरणीय यानी क्या है? परमात्मा सर्वव्यापी है. इतना सूक्ष्म है, सटलर देन द सटलेस्ट. तो वो सब जगह है. Yes. ये लकड़ी में भी है, टेबल में भी है, कपड़े में भी है, मुझ में भी है. तो आत्मा जो है अनोरणीयान होने से सब में अंतर्व्यापी हो गया. Yes, महतो महीयान, सबसे महान है, आकाश से भी महान, यानी सर्व सबके ऊपर से आवृत भी है. एक तो है सबके अंदर भी है और सबके चारों ऊपर व्याप्त भी है. Yes. और तीसरा है प्राणी के हृदय में भी व्याप्त है. अनोरणीयान से भी संतुष्ट नहीं हुए, अलग से कहा कि हमारे हृदय में व्याप्त है. अब इसका ध्यान करना है. द पॉइंट इज, इतना कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है हम परमात्मा का ध्यान करें, सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करें. आप परमात्मा सबके चारों ओर आवृत है. जैसे कपड़ा पहना दिया सबके ऊपर, एक कपड़ा लेके आप जितने टेबल कुर्सियां ये सब है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो तो क्या दिखेगा आपको? कपड़ा दिखेगा. और क्या है, हर एक कपड़े टेबल कुर्सी का रूप दे लिया उसने, लेकिन है क्या? कपड़ा ही दिख रहा है. ये भगवान ने एक टेबल का, मकान का, आदमी का रूप धारण कर लिया है, लेकिन ऊपर से ये अंदर से रूप है, लेकिन ऊपर ही ऊपर सब परमात्मा ही है. अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा. इसका ध्यान करना है. और तीसरा ध्यान ये करना है, चलते फिरते उठते बैठते अकेले हुए तो हृदय में ध्यान करिए भगवान का. अपने इष्ट का ध्यान भगवान में कीजिए. तो ये 3 बातें इस छोटे से श्लोक में आधी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कही गई है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब एक प्रकार से ध्यान करो, 2 प्रकार से ध्यान करो या 3 प्रकार से ध्यान करो, डजंट मैटर. जो तुमको अच्छा लगे उस प्रकार, किसी न किसी प्रकार से केवल भगवान का ध्यान करना और कुछ नहीं करना. इज दैट ओके? महाराज मंत्र को पढ़ो क्या? है मंत्र को अनोरणीतान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गयाम गुहायाम क्रतु पश्यति शोको धातु प्रसादात महिमान. Isn't it? ठीक है महाराज. हाँ, तो वो पहली लाइन का ही इम्पोर्टेंट है. नमक्रतु जो है वो ध्यान त्यागी से धातु प्रसादात, परमात्मा की कृपा से वो आत्मा महिमानम, आत्मा को वो ध्यान करते हैं, प्राप्त करते हैं. ओके, दैट्स ऑल. Yes, sir. Yes, Swami. Thank you, Swami. Yes, It's very Swami. important. I'm glad you only asked one question. It's very good. Yes, sir. अच्छा, कुंडू आ गए तुम? Have you joined, कुंडू? हाँ, ज्वाइन कर लिए महाराज. अच्छा, कुंडू. प्रणाम महाराज. हाँ, जो ask questions. यस महाराज. Maharaj, my first question is Brahman and Shakti as explained by Sri Ramakrishna
and the concept of Purusha and Prakriti of Sankhya philosophy the same? No, Yes, ma'am. no. श्री रामकृष्ण तो शक्ति को बताते हैं, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली, Yes, ma'am. लेकिन सांख्य में ये नहीं कहते हैं। पुरुष जो है, प्रकृति जो है वो जड़ है लेकिन क्रियाशील है। जब पुरुष पास में आता है तो वो होती है, लेकिन जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए वहां पे सांख्य में कुछ बताया नहीं गया है। सांख्य में जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय के मामले में वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो पुरुष है यानी चैतन्य है, 100 सब असंख्य चैतन्य सत्ता है। मुझ में भी एक जीव है, एक कीड़े में भी जीव है यानी आत्मा है। वो सदा विद्यमान ऐसे कैसे रहेंगे? और बाकी जो दूसरी चीज है वो जड़ है। बस ये 2 एंटिटीज बताते हैं, उसके बाद में उसके 24 तत्व हो गए, ये बात वो तो छोड़ दो। उस प्रकृति के ही 24 तत्व होते हैं, प्रकृति के 14 एलिमेंट्स होते हैं। अहंकार है, मन है, अहंकार बुद्धि इत्यादि करके महत अहंकार बुद्धि इत्यादि करके पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय इत्यादि करके उसके ये 24 तत्व हैं। ये प्रकृति के भेद हैं। तो वहां पे प्रकृति को उसे जगत सृष्टि स्थिति प्लान करने वाली प्रकृति इत्यादि नहीं कहते। नहीं महाराज, या नहीं। लेकिन महाराज जो प्रकृति त्रिगुणात्मिका बोला है, सत्य राजा तम, वो तो सांख्य में भी है। सांख्य में मिला है, सांख्य तो है त्रिगुण तो जो है उससे ही तो सृष्टि तो उसी से हो रहा है। अब वो आप मानो, लेकिन सांख्य में उसका वर्णन नहीं है। अच्छा, और ठाकुर जब बोल रहे हैं ब्रह्म और शक्ति अभेद, तो व्हाट इज ही मीनिंग? मतलब उसमें इसमें जैसे नहीं, ये तो है कि उससे वो उसका सांख्य से कोई संबंध नहीं। अच्छा, ब्रह्म और शक्ति प्रकृति, सांख्य में ब्रह्म और शक्ति हमेशा यानी जिसे आप कहते हो पुरुष और प्रकृति, ये दोनों हमेशा अभिन्न रहेंगे, अलग रहेंगे। सॉरी, अलग रहेंगे। यस मैम, सदा अलग रहेंगे। यस, ठाकुर बोलते हैं दोनों एक हो जाएंगे, नहीं। ठाकुर वहां पे वेदांत ले आते हैं। सांख्य में ये नहीं है, पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, हमेशा अलग रहेंगे। यस महाराज, नेवर कम टुगेदर। ओके महाराज। महाराज ब्रह्म और शक्ति तो ब्रह्म के आधार पे ही काम करेगी ना? नहीं, ये तो वो तुमने दूसरी बात ला रहे हो, यहाँ पे सांख्य की बात हो रही है। नहीं, ये जो ठाकुर ने कहा है ब्रह्म शक्ति अभेद की बात, यहाँ पे मेरा ये प्रश्न ये है कि जो ठाकुर की बात है और सांख्य की बात है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। यस महाराज। अब ठाकुर ने क्या कहा ये फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा महाराज। महाराज एक मेरा यहाँ पे एक सवाल है। ये यहाँ पे बताया गया है, हिंदी के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ 4 लाइन। वेदांत में ब्रह्म नामक चरम सत्ता की धारणा है जो अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है तथा जीव तथा स्थूल पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त है। इट्स परफेक्टली फाइन। सांख्य में ईश्वर अथवा परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि वेदांत में है। सभी जीव एक प्रकार के हैं। योग और सांख्य में जहाँ कहीं भी ईश्वर का उल्लेख हुआ है, वहां उसे नित्य मुक्त गुरुओं के भी गुरु पुरुष विशेष कहा गया है। ये भी समझ में आ गया। इसके आगे की लाइन है, लेकिन वह जगत स्रष्टा नहीं है। पतंजलि का कथन है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण के लिए शीघ्र समाधि हो सकती है। तो ऊपर तो ये कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते नहीं है, यहाँ कहते हैं कि भक्ति के द्वारा। नहीं, सांख्य में देखो, सांख्य में ईश्वर नहीं है। हाँ, सांख्य का दूसरा पार्ट है योग। सांख्य और योग एक साथ चलते हैं जी। तो योग में ईश्वर को माना है। लेकिन ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष एक। सब इतने सब पुरुष है ना, पुरुष यानी आत्मा है। हाँ। उसमें एक विशेष आत्मा है ईश्वर, जिसमें कर्म नहीं है, क्लेश नहीं है, कर्म का फल नहीं है, कर्म का संचय नहीं है। ये कर्म का जो जीव दूसरे जीव है वो कर्म फल में चक्कर में रहते हैं, उसमें जीव में नहीं होता।
ये जीव ईश्वर जो है ये क्या है, सर्वज्ञ है, सब जानता है, और ये काल से सीमा नहीं होता, काले न अनवच्छेदा। ये 3 लक्षण है ईश्वर के योग सूत्र के अनुसार। अब कहते हैं उसका वाचक है ओम, ओम है उसका नेम। ओम का जप करिए और उसके अर्थ का चिंतन करने से शीघ्र समाधि होती है। बस इसके लिए ईश्वर को बताया गया है। इसको जगत की सृष्टि या जगत के नियंता के रूप में कभी नहीं लेना है। अच्छा महाराज, यस महाराज जी महाराज, दैट इज द पॉइंट। दिलीप भाई समझे? हाँ समझ गया महाराज। जी जी प्रणाम। हाँ, उसको आप ईश्वर को, ये वेदांत के ईश्वर को या द्वैतवादी ईश्वर को वहां मत लाइए। जी संसार को चलाने वाले ईश्वर को, भक्ति वाले ईश्वर को। यहाँ पे भक्ति का आश्चर्य है, भगवान का राम ओम का नाम लीजिए और ऐसे उस परमात्मा ईश्वर का चिंतन कीजिए जिसमें कर्म नहीं है, वो शुद्ध है, बस। जी और कुछ। इज दैट ओके? ठीक है जी प्रणाम। जी महाराज। यस महाराज। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आई एम ग्लैड तुमने पूछ लिया ये। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, हाँ, does all religions try to preach the same absolute reality or principle through their rituals and philosophy? If so, why there is so much of enmity between the followers of different religions or among the sects of the same religion over the supremacy of their own doctrine? now what your question is, absolutely first question is wrong. हाँ महाराज। Everyone is not trying for absolute. Absolute अच्छा। one is not trying for absolute. Or so many religions are there. यस महाराज। तो आदिवादियों का भी एक भगवान है, उसकी पूजा करते हैं। वो पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा जो ट्राइब है उसकी रक्षा करेगा। दूसरे कहते हैं हमारी प्रोटेक्शन करेगा, हमें भक्ति देगा, हमारे खाना पीना देगा। तो भगवान की धारणाएं एक नहीं है। ये पहला पॉइंट तुम्हारा रॉन्ग है। लेकिन सब महाराज कोई एब्सोल्यूट को नहीं प्राप्त करने वाले हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं चाहता है। अरे हिंदू धर्म में भी जो द्वैतवादी है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं चाहते हैं जी। वो वैकुंठ में जाना चाहते हैं भगवान के साथ में। जो शिव जी के भक्त हैं वो कैलाश में जाना चाहते हैं, पूजा अच्छा। करने के बाद शिव जी के साथ में रहेंगे, वो एब्सोल्यूट को नहीं चाहते हैं। तो तुम्हारे ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट जो है उसको क्लियर कर दो कि दे आर नॉट आस्किंग फॉर एब्सोल्यूट। इज दैट ओके? हाँ, लेकिन महाराज इसमें इस आर्टिकल में भी तो बोला है कि आदमी का जैसे पर्सन बिकम्स मोर एंड मोर रिफाइंड, तो उनका जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, उसका जो कैरेक्टर है वो भी धीरे धीरे चेंज होता है। पहले जो फियर से शुरू किया था, ग्रेजुअली फिलोसॉफी में जब आ जाता है, देन ही सीज देम एज सिंबल्स एंड डज द पूजा which is for the absolute, for the beyond something, transcending the stone or the tree or the image. रामकृष्ण में बोला है वो इमेज तो इमेज नहीं है, वो तो चिन्मयी सत्ता है। अच्छा ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन महाराज वही इसीलिए है कि एब्सोल्यूट आप बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं चाह रहा है सारे धर्म में, लेकिन धर्म या मेरे कहने के मतलब फॉलोअर्स ऑफ धर्म एज पर देयर दिस थिंग दे आर नॉट लुकिंग फॉर द सेम थिंग। इतना तो समझ में आ गया। बट द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन व्हेन समवन बिकम्स एडवांस, देन द क्वेस्ट स्पिरिचुअल क्वेस्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। You see, essential principle के अनुसार तो जो शिव हैं वही विष्णु हैं। यस महाराज, यस महाराज। लेकिन जो विष्णु भक्त है, जो अभी उतने essential principle पर नहीं गया है, वो Yes. तो विष्णु से झगड़ा कर, शिव से झगड़ा करेगा। आप समझ में आ गया। विष्णु बड़ा है, शिव बड़ा नहीं है, और शिव कहेगा नहीं, शिव के बिना नहीं होगा। तो जब तक हमारा डेवलपमेंट, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक झगड़े होंगे ही। ये समझ में आया महाराज। यस, अंडरस्टूड। ओके, यस महाराज, नाउ आई हैव अंडरस्टूड। हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। यस महाराज। अच्छा, Now, Maharaj ji, I am ready. Can I come back? हाँ, yes, yes, come on.
Maharaj ji, I had 3 questions. Out of that, you have already spoken about that Ishvara and Brahman. That how one is gone. And now, I read 2 questions. Number 1, we understand that the necessity of worshipping the incarnation. How to recognize an incarnation of God unless he himself reveals to others? Sri Ramakrishna revealed himself to his 16 monastic disciples and some householder like Master Mahashaya and Nag Mahashaya. So incarnations को जानना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. अतः वो तो उन्होंने तो 16 डिसाइपल्स को बताए थे, तुमको तो बताया नहीं, तब क्या करोगे तुम? तब क्या करोगे तुम? बोलो. तुम भी उसके बिना भी तो रामकृष्ण को मान रहे हो, तुम अवतार मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हाँ मान रहे हैं. बोलो. हाँ मान रहे हैं, सुने हैं, तो पढ़े हैं. श्रद्धा, बिलीफ से विश्वास. तो फिर और कृष्ण ने भी, कृष्ण के अवतार, कृष्ण तो भगवान स्वयं, हाँ कृष्ण को भी मान रहे हैं, राम को भी मान रहे हैं, तो फिर इतना चक्कर क्यों? तो नहीं, मेरे को आके रामकृष्ण खुद बोलेंगे कि मैं अवतार हूं तब मानूंगा, तो बाबा तुम ठहरो उसके लिए. ये कैसा क्वेश्चन? कहीं ना कहीं फेथ तो होनी चाहिए. श्री रामकृष्ण ने 16 डिसाइपल्स को कहा था, मैं उसको विश्वास करता हूँ. मैटर एंड्स देयर. अच्छा, ओके महाराज, ओके, क्या क्वेश्चन है अंडरस्टूड. तुम्हारा? ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, which is the better? Thank you महाराज. Second question महाराज, which is the better idol, an ordinary idol of flesh or blood, or an idol which represents a higher ideal? What is the higher ideal? We find highest ideal in Sri Ramakrishna, Ma Sarada and Swami Vivekananda. Are they ordinary idols of flesh and blood? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा है ना, आइडल क्यों बनाते हैं? फ्लैश एंड ब्लड की ऑर्डिनरी आइडल जो होती है ना, ये वो जो पति पत्नी एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत, तो इसलिए वो बना लेते हैं अपनी पत्नी को, उसने अपना आइडल बना लिया, भगवान बना लिया. ऐसे लोगों के लिए कहा गया है फ्लैश एंड ब्लड के आइडल्स. अच्छा, ठीक है. हाँ, अच्छा, समझ में आया महाराज. हाईएस्ट आइडियल, सारा मन पत्नी में लगा है, अपनी लड़की से किसी लड़की को अपना आइडल बना लिया, उसको अपना प्रिय बना लिया, उसी में सारे मन को लगा दिया. ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये फ्लैश ब्लड के आइडल हैं. लेकिन ठाकुर माँ, स्वामी जी, ये लोग जो फ्लैश एंड ब्लड के हैं, लेकिन ये ऐसे आइडल नहीं है. अच्छा, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू. हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन. थैंक यू महाराज. तीसरा क्वेश्चन हो गया. तीसरा क्वेश्चन हो गया. हाँ, तीसरा क्वेश्चन तो आपने बताया ईश्वर एंड इसके बारे में, तभी पढ़ लेता हूँ मैं. ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इन Vedanta. Then who is the Ishvara in Vedanta? Higher than Brahman. According to Swamiji, man's highest reading of the absolute. Swamiji का ये समझ में नहीं, I couldn't understand. According to Swamiji, the man's highest ideal reading of the absolute is Ishvara. ये क्या है समझ में नहीं आया. ईश्वर है, यस. यानी एक है कि हम ईश्वर को तो एब्सोल्यूट को हम वो नहीं कर सकते ना. वी कैन ग्रास्प द एब्सोल्यूट. हाँ, एब्सोल्यूट जो है निर्गुण निराकार है, मन के द्वारा उसको ग्रहण नहीं कर सकता. निर्गुण निराकार को चिंतन नहीं कर पाता, इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे करके लिया है. अच्छा, तो मानव मन के लिए ईश्वर जो है वो एब्सोल्यूट का हाईएस्ट है, उसके ऊपर मानव मन नहीं जा सकता. अच्छा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला के एक ईश्वर बना दिया. अच्छा, जगत की सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, उसको हमने ईश्वर बना दिया. तो ये मानव मन की इच्छा के लिए, मानव मन के संतोष के लिए ये किया. ओके, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू.
रीता हो हो गया। गया ना, निवेदिता। जी महाराज, ये पहला मेरा प्रश्न है जो मैक्स मूलर ने, ये व्हाट इज हिनोथिज्म बाय मैक्स मूलर यहाँ पर बताया, उसको जरा आप एक्सप्लेन करेंगे तो। उसमें ना कहा ना कि मोनोथीज्म यानी एक ईश्वर को मानना। हाँ। तो हिंदुइज्म जो है ना वो मोनोथीइस्टिक है। अब कैसे हिंदुइज्म में इतने भगवान हैं, हाँ हाँ। तो इसको जो इतने भगवान बना दिया, इसको हिनोथीइज्म कर दिया, नाम बदल दिया बस। अच्छा। हाँ, एक ही भगवान के अलग अलग नाम कर दिए। ठीक। विष्णुर्वा त्रिपुरांत को भवतु वा, इस श्लोक है पर प्रसिद्ध है। हाँ हाँ। विष्णुर्वा त्रिपुरांत को भवतु वा, ब्रह्मा सुरेंद्रोथ वा, भानुर्वा यत सिद्धोत वृद्धोत वा, राग द्वेष विषार्ति मोह रहित सत्वानुसंकोचतो यह सर्वे स संस्कृतो गुणगणे तस्मै नमः समः। जिसको तुम विष्णु कहो, त्रिपुरांतक शिव कहो, ब्रह्मा कहो, सूर्य कहो, वायु कहो, ये जो भी कहो, तुम्हारा नाम एक ही भगवान के तुमने इतने सारे नाम कर दिए। लेकिन जो राग द्वेष रहित है और संसार के प्राणी के ऊपर कृपा युक्त है, उसको तस्मै नमः सर्वदा, उसको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे, जनार्दने वा जगतांतरात्मे। एक ही वस्तु को महेश्वर कहा, जगत का ईश्वर कहा, जगत अंतरात्मा कहा, जगत के सृष्टिकर्ता कहा, एक ही है। नाम अलग अलग हो गए हैं लेकिन है एक ही। तो ये नाम अलग अलग होना, इसको हुआ हिनोथीइज्म। और एक ही परमात्मा का ध्यान करना, ये हुआ मोनोथीइज्म। मोनोथीज्म। ओके जी महाराज, अब समझ में आ गया। हाँ। तो अब दूसरा प्रश्न वही पर है कि व्हाट इज मोनोथीइस्टिक, आपने अभी बताया है। रिगार्डिंग थीइस्ट डॉक्ट्रिन, हिंदुइज्म इज एज मोनोथीइस्टिक, तब अभी आपने बताया, वही है ना मैंने? हो गया वही है क्वेश्चन। हाँ, ये हो गया। हाँ दोनों क्वेश्चन एक साथ। हाँ जी महाराज। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ गॉड। एक साकार और निराकार। और निराकार, जैसे हम लोग ध्यान करते वही है ना महाराज? हाँ, आपने इष्ट ध्यान का- किया तो एक साकार हो गया, हाँ, एक हाँ, पर्सनल एस्पेक्ट हो गया। जी। और इम्पर्सनल आ गया, सर्वव्यापी है, कोई स्थान नहीं है, हाँ हाँ, अंदर बाहर सर्वत्र है, इम्पर्सनल हो गया। सब जगह ठीक है। अभी है चौथा प्रश्न है, इस यहाँ कहा गया है कि डिवाइन प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट? डिवाइन प्रिंसिपल इज डिवाइन प्रिंसिपल यानी परमात्मा। परमात्मा। जहाँ डिवाइन प्रिंसिपल आवे ना, वहाँ बोलना परमात्मा। अलग अलग लोगों को समझाने के लिए, फॉरेन में लोगों को बोलने के लिए परमात्मा नहीं बोला, उन्होंने डिवाइन प्रिंसिपल बोला। हाँ, यही ठीक है। अब उसके बाद है ये आपने अभी क्वेश्चन का ये आंसर बता दिया। व्हाई इन स्पाइट ऑफ वास्ट व्यू ऑफ हिंदू रिलीजन देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड अमंग ईच अदर, अभी आपने एक्सप्लेन किया है। मतलब ठीक, हाईएस्ट ये थ्योरी होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब जिसका जैसा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, जैसे व्यू होगा, उसी के अनुसार वो देखेगा ईश्वर को। अरे भाई, जो विष्णु है वही शिव है। हाँ, लेकिन लोग नहीं है। झगड़ा करते हैं, शिव वाले विष्णु झगड़ा करते हैं। लेकिन शिव जी और विष्णु जब आते थे ना, तो दोस्ती, एक दूसरे की पूजा करते हैं। कहानी कितनी सारी है। हाँ जी। अब लास्ट क्वेश्चन है, मदर काली रिप्रेजेंट एंटायर कॉस्मिक प्रोसेस विथ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, ये आप एक जरा बताइए। तो शिव जी के ऊपर काली खड़ी हुई है ना। हाँ हाँ, तो शिव जी रिप्रेजेंट्स द निर्गुण निराकार जी। हाँ। और उसी से जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली काली उत्पन्न हुई है। तो इसलिए निराकार के ऊपर साकार पूरा ईश्वर विद्वान है काली।
काली केवल सृष्टि संहार करने वाली नहीं, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली सब है काली, और शिव जी है निर्गुण निराकार आधार उसका। अच्छा जी। तो जो भगवान है ना, जो हम बोलते हैं, उसके पीछे सच्चिदानंद परमात्मा सदा विद्यमान रहते हैं, ये ध्यान जी। ये यहाँ पे बताया गया। बस हो गया महाराज, बस। तुम्हारा ईश्वर के संबंध में अच्छा कोई आर्टिकल है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बिल्कुल सीधा है। ये शिव और शक्ति, शिव जी के ऊपर काली, ये हमेशा ध्यान रखना। यानी काली ऐसे ही खड़ी हो सकती है, शिव जी के ऊपर क्यों खड़ा कर दिया? शिव जी निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी से ये नाम रूपात्मक जगत सृष्टि हुई है, उसी से ईश्वर बने हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर भी बने हुए हैं। तो दोनों अभिन्न है, ये सदा याद रखना जी। तो माँ काली की जब पूजा करो तो हमेशा शिव जी की भी पूजा करना, हमेशा ध्यान रखना। वो कुछ नहीं पड़े हुए ना, निर्गुण निराकार पड़े, कुछ नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सभी के जीवन में भी हम लोग सृष्टि स्थिति प्रलय, हमारे जीवन में खाना पीना उठना बैठना नींद सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे परमात्मा सदा विद्यमान है, ये भी ध्यान रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी महाराज। प्रणाम महाराज, एक क्वेश्चन था इसमें, पूछो तुमने क्या? तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो तुम्हारा तो इस बार कैसे क्वेश्चन तुमने इस बार नहीं किया? बोलो, पूछो पूछो। और पूछो। जी महाराज, ठाकुर बार बार उन्होंने कहा कि माँ के बारे में कि वो मेरी शक्ति है। हाँ, तो यहाँ मतलब ठाकुर और माँ दोनों ही तो सगुण ब्रह्म से मतलब अवतार, दोनों ही अवतार है, और लेकिन ठाकुर की शक्ति माँ है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए इस सिलसिले में। वो इसी तरह से कि शिव के ऊपर काली। अच्छा। तो ये है ना, हाँ। वो जब ठाकुर बोलते हैं कि शक्ति, मतलब ये है कि मैं शिव हूँ और माँ काली है। अच्छा। हाँ, और नहीं तो फिर अगर अवतार बोलोगे तो उसमें संदर्भ में तो माँ भी अवतार है, ठाकुर भी अवतार है जी, दोनों को तब कंफ्यूजन हो जाते हैं। हाँ, और फिर दोनों ही अवतार है, दोनों ही सगुण ब्रह्म से ही आए हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि वो मेरी शक्ति है। हाँ, तभी तो मतलब देखो ऐसा ना, ठाकुर के चले जाने के बाद ठाकुर ने क्या कहा, मैंने क्या किया है, तुमको सब करना पड़ेगा। तो माँ ने कितने 35 साल तक ठाकुर के जाने के बाद में कितना किया ना। जी। तो वो हो गई ना ठाकुर की शक्ति। ठीक है महाराज। स्वामी जी ने बोला, मैंने स्वामी जी के जीवन में पढ़ते हैं कुछ माँ काली के संबंध में उनका जो विचार था वो उन्होंने व्यक्त नहीं किया, वो क्या है महाराज? नहीं, वो तो फिर ठाकुर तो यानी ठाकुर ने शक्ति, अपनी शक्ति तो माँ में भी दी थी और ठाकुर स्वामी जी में भी दी थी। हाँ, जी जी, क्या है ना। ठाकुर को स्वामी जी को स्पर्श कर दिया था। और एक बार ठाकुर के ऊपर स्वामी जी लेटे हुए थे, ठाकुर जाके बैठ गए बलराम मंदिर में, और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, ओई ये ठाकुर अमर भीतर ढुक छे। यानी ठाकुर की शक्ति जो है वो स्वामी जी में विलीन हो गई। तो सच पूछा जाए तो ये ठाकुर की शक्ति ही है जो माँ के रूप में, स्वामी जी के रूप में, डायरेक्ट डिसाइपल्स के रूप में काम करी थी। ठाकुर ने कोई ज्यादा काम नहीं किया जी। ठाकुर ने जो है ना केवल इन लोगों को बनाया, दैट्स ऑल, साधना करवाई, लेकिन बाकी अपनी शक्ति को इन लोगों में भीतर डाल दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है प्रणाम। अच्छा, सतीश विग। हाँ महाराज। हाँ भाई बोलो। Maharaj, my first question. According to Samkhya Yoga,
there is one Purusha or soul only. Sorry. But according to Samkhya Yoga, God is an individual person who is ever free and Guru of Gurus. Whereas according to Vedanta, God resides in the hearts of the Jivatmas and creator of universe. मतलब कहने का मतलब यह है महाराज के सम्यक्य फिलॉसफी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सम्यक्य फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, द डेफिनेशन ऑफ गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेदांता. हाँ ठीक है, अभी डिस्कस कर लिया हमने तो. पर आर दिस सम कॉमनैलिटीज बिटवीन द God of Sankhya philosophy and that of Vedanta? There are some commonalities of attributes. उसमें ईश्वर में कर्म नहीं होता, उस ईश्वर में क्लेश नहीं होते. ईश्वर जो कर्म करेगा तो उसका पाप पुण्य उसको फल भोगना नहीं पड़ता. इस प्रकार के लगा लो कुछ है बस. वो सर्वज्ञ है, सब जानता है. वो सर्व पूर्वेशाम अपि गुरु तो नहीं है, लेकिन वो सर्वज्ञ है, ये तो जानता है. तो ईश्वर सर्वज्ञ है. क्लेश कर्म विपाक आशय कर्म फल इत्यादि उसको नहीं होता, संचित कर्म इत्यादि नहीं होता. ये चीज जो है वो वेदांत के ईश्वर में भी होता है बस. वो उसको जैसे और कोई हाँ जी, पर उसमें एक डिफरेंस है महाराज, जैसे वेदांत के ईश्वर को हम यूनिवर्सल मानते हैं कि वो हर हृदय में है, इमनेंट है. हर के हृदय में मतलब कि इमनेंट उसको देखा जा सकता है उसको. तो लेकिन वो जो इंडिविजुअल पुरुष है उसको तो हर जगह नहीं देखा जा सकता ना. उसको तो इट कैनॉट बी. देखो ऐसा है, जो ईश्वर जो सांख्य का ईश्वर है उसको देखने का कोई प्रश्न नहीं उठता. वहां सांख्य के ईश्वर क्या है कि उसका पुरुष का जप करने से, अर्थ भावनम करने से, उसका अर्थ का चलने से चित्तवृत्ति निरोध होती है. वहां पे ईश्वर को प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है सांख्य में या वेदांत में, योग में. जी महाराज, जी महाराज. वो जीवन का लक्ष्य है चित्तवृत्ति निरोध करना बस. जी वहां पे ईश्वर दर्शन का प्रश्न नहीं उठता. सांख्य और योग दोनों में नहीं उठता है. तो लाओ उन्हें चक्कर में मत पड़ो. दोनों बिल्कुल भिन्न है. ठीक महाराज, ठीक महाराज, समझ गए महाराज. वेरी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना. जी महाराज, कभी मिक्स मत करना. जी महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मदर गॉड कॉल्ड परमाशक्ति? Is she Prakriti as per the Sankhya philosophy, or she is Brahman herself as per the Vedanta philosophy who has transmuted herself as Maya? सुनो, फिर ये वो सांख्य फिलॉसफी में मत लगाओ इसको बिल्कुल. जी. ये बार बार तुम सांख्य को मत लाओ. उसको माया भी, अरे सांख्य में माया नहीं है. वेदांत में तो है ना महाराज. वेदांत के कॉन्सेप्ट से माया तो कह सकते हैं ना. वेदांत नहीं, तुम पहले ये बताओ, सांख्य से इसको हटा देना बस. जी. अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो वेदांत के कॉन्सेप्ट से जब परमा प्रकृति कहेंगे तो उसको क्या माया कहेंगे महाराज? उसको माया कहेंगे? माया के, हाँ, माया भी कह सकते हो और उसके ऊपर ईश्वर भी कह सकते हो. जी. ईश्वर यानी परमा प्रकृति का ध्यान करके हम माया से परे हो जाएंगे. जी महाराज. माया जो है वो जड़ है, और ये परमा प्रकृति जो है वो चैतन्य है. जी महाराज. अरे भाई, ऐसा तो वेदांत में भी तो कहा ना कि ईश्वर ने क्या किया, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए. ईश्वर की मुस्कुराहट जो है ना वो माया है, और सारा जगत मोहित हो गया उससे. अब उससे यदि आगे बढ़ना है, माया से ऊपर उठना है, तो ईश्वर की प्रार्थना करो, परमा प्रकृति की प्रार्थना करो कि हमको इस माया से चक्कर से मुक्त करो. तो इस तरह एक तरह के ईश्वरी माना जाता है. जब उसकी हम पूजा करते हैं तो ईश्वरी मान की पूजा करते हैं. हाँ, ईश्वर मानो ना, परमात्मा प्रकृति को ईश्वर मानो. तुम्हारा जो ईश्वर का कंसेप्ट है, जी.
ठीक महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 59 पर, अकॉर्डिंग टू विशिष्ट अद्वैता गॉड इज इमनेंट पर्सनल डिवाइन which manifests through infinite forms. He is infinite and formless. God is infinite and formless, which manifests through finite forms. So in this way they worship God as an impersonal God, although he has a finite form. In this way, in Vishishta Vedanta, God is worshipped as a impersonal God, although he has a finite form. हाँ, तो ये कैसी साधना होती है महाराज? ये तो अब जैसे ऐसा है कि भाई मुझे निराकार पसंद नहीं आता, मुझे साकार पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता, ये जी महाराज। तो फिर सर्वव्यापी परमात्मा का, सर्वव्यापी आत्मा परमात्मा का ध्यान करो। जी जी जी। तो परमात्मा है, सर्वव्यापी है, चैतन्य है, आनंदमय है, उसका ध्यान करो। लेकिन वो फाइनाइट फॉर्म्स में अपीयर होता है। नहीं नहीं, वो इन्फिनिट सर्वव्यापी कर दिया ना हमने। अच्छा जी, सभी सभी जी, एक भी है और सभी सोल्स में भी है। यूनिटी इन रिवर्सिटी, अनंत अनंत रूपों में सारे अनंत सर्वव्यापी हैं, अनंत जीवात्मा है वो, ऐसा ध्यान करो। जी महाराज, जी महाराज। तो ये सर्वव्यापी हो गया। जी महाराज, जी महाराज। और नहीं लगता है तो फिर एक बना लो उसको। जी महाराज। ये रामानुज जी का मत है, तो उसमें तो विष्णु को भी स्वीकार कर लेते हैं वे। हाँ जी। ये विष्णु है, सर्वव्यापी हैं, जी जी, सबके हृदय में विद्यमान है। वो तो इम्पर्सनल नहीं, फिर तो पर्सनल हो गया ना महाराज। वही तो मैंने कहा कि पर्सनल, वो विशिष्ट अद्वैत की बात करो तो वो पर्सनल इंस्पिरेंस मिक्स होता है। जी महाराज। साकार निराकार मिक्स होता है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत यानी एक ही है, लेकिन विशेष है, यानी सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब जगह। राइट राइट, सभी सभी के हृदय में। कोई माता जी आई थी? जी महाराज। ठीक है, ओके, ठीक है, प्रणाम महाराज। अच्छा, अब आया मजुमदार, आ गए तुम, आ जाओ। सुबीर, प्रणाम महाराज जी। तुम कहाँ से बोल रहे हो? शिकागो से महाराज जी। अरे बाबा, वही तो मैंने कहा ये कैसा जमाना आ गया है, जूम में बैठ के हम शिकागो से बात कर रहे। चलो। हाँ महाराज जी, यहाँ 11:15 बज रहे महाराज जी रात के। अच्छा, तो, रात के 11:15? हाँ महाराज जी, हाँ जी, रात के 11:15। अच्छा, अरे बाबा। तो महाराज जी, पहला सवाल कर रहा हूँ। ये आपने एक्चुअली अभी पिछले सवालों में एक्सप्लेन कर दिया है। ऑन पेज 66 फर्स्ट पैराग्राफ, स्वामी अतीश्वरानंद जी कहते हैं, माँ काली स्टैंडिंग विथ 1 foot on the chest of Mahadeva is symbolic of the entire cosmic process with transcendental reality as its basis. What does he mean by this? तो इस सवाल का जवाब तो आपने बहुत अच्छा बता दिया है कि शिव और शक्ति जिस प्रकार हैं वो शक्ति के रूप में है। सो वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका जवाब मिल गया है। प्रोसेस हो गई ना, प्रोसेस। जी जी। तो कॉस्मिक प्रोसेस है सृष्टि, स्थिति, प्रलय। तो अगर शिव जी को लगा दिया है, यानी शिव जी से काली उत्पन्न हुई है, यानी वो सृष्टि का भी प्रतीक है वे, और उसके बाद में वो संहार का तो प्रतीक है ही। यानी होल ऑफ कॉस्मिक प्रोसेस इज देयर शिव शक्ति। राइट राइट, उसमें सारा आ गया। जी महाराज, सारा जी। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी उसी पेज में है। स्वामी अतीश्वरानंद जी कहते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स सी ह्यूमन लिमिटेशंस इन द इनकारनेशंस while a Hindu devotee is able to see only divinity and divine attributes. Now my question is, why is it so when their Christ too had a human form?
फादर सन नहीं, ऐसा है कि ह्यूमन फॉर्म के कारण दे आर एबल टू गो क्लोजर टू द डिवाइन। हाँ, लेकिन वो फिर भी उसमें भी वो मतलब लिमिटेशंस देखते हैं ना वेस्टर्न स्कॉलर्स, मैं यही कह रहा हूँ। तो क्राइस्ट में तो लिमिटेशंस देखते नहीं है। हिंदू डिवोटी इज एबल टू सी ओनली डिविनिटी एंड डिवाइन एट्रीब्यूट्स। जी जी। तो दैट इज है कि हिंदू एट्रीब्यूट देखते भी है भी, यानी वो राम है, कृष्ण है, तो कृष्ण को बच्चा देखते हैं तो लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है। जी जी जी। ओ बच्चा रो अच्छा, रहा है। जी जी जी, दोज लिमिटेशंस। इवन लिमिटेशन से देख रहे हैं, दो दे फुल्ली नो दैट ही इज गॉड। हाँ हाँ हाँ, वो अपने जैसा बना लिया। जी जी। लेकिन वेस्टर्न स्कॉलर्स, सेंटेंस क्या है तुम्हारा? व्हाई इज इट सो व्हेन, मतलब वेस्टर्न स्कॉलर्स लिमिटेशंस क्यों देखते हैं? वो उनमें डिविनिटी या डिवाइन एट्रीब्यूट्स को उस तरह क्यों नहीं समझते जैसे एक हिंदू डिवोटी समझता है? नहीं, इसलिए आई थिंक इसलिए कि उसमें what they want to suggest is that God becomes like us. Incarnation becomes us and accepts all our limitations. उसको सफरिंग होता है, दुख होता है, उसको डेथ होती है, ये सब उसमें वो देखता है। And so he is able to associate with God. कि भगवान भी तो मेरी तरह से है। हाँ। और भगवान केवल वहां रहेगा, उसमें केवल शक्ति होगी तो मेरे से बिल्कुल भिन्न होगा। इसलिए जो है ना, भगवान जो है तो नीचे आता है, जब कृष्ण बनता है तो वो पीड़ा उठा नहीं सकता। बाबा को बोलता है, बाबा मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। so that you are able to associate him at that level. इसीलिए क्राइस्ट जो है वो ही lived a human life so that you are able to associate with him, absolutely human. उनको ही भूख लगती थी, दूसरे को कष्ट होता था तो उनको कष्ट होता था, all that होता था। प्लस in between divinity shows. उन कष्ट हुआ लेकिन उन्होंने दूर कर दिया, उन्होंने मिराकल किए। तो हमारे कृष्ण भी जो है वो पीड़ा उठा नहीं सक रहे हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जी जी। ये भक्त के लिए भगवान जो है ना वो लिमिटेशंस को इंटेंशनली स्वीकार करते हैं जी, सो दैट द भक्त जो है वो उनके साथ में एसोसिएट कर सके, ये बिकम क्लोजर। अगर लिमिटेशंस नहीं हो गए, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ऑल पावरफुल हो गए, तो उसके पास जा ही नहीं सकेगा भक्त। और यही कह रहे हैं वो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनमें वो भाव नहीं होता, दे आर जस्ट ड्राई स्कॉलर्स, यही बता रहे शायद। Swami Yateswara said Western scholars see human limitations with incarnations, while a Hindu devotee is able to see only divinity and divine attributes. जी और जी। वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं उसमें केवल लिमिटेशंस ही देखते हैं। जी जी। वो मेरे को ये कहा कि ये पहली लाइन जो है ना, वेस्टर्न स्कॉलर्स सी ओनली ह्यूमन लिमिटेशंस विद इनकार्नेशंस। अगर केवल ह्यूमन लिमिटेशन देखेंगे तो फिर इनकारनेशन क्या हुआ? वो इनकारनेशन का एडवांटेज यही होगा टू शो दैट ह्यूमन लिमिटेशंस को कैसे बियर करना। समझे ना? जी I जी। think that is the thing which might be Maharaj. The point, yes. That's all, Maharaj ji. प्रणाम महाराज जी। अच्छा, अब any other questions? जी महाराज जी, मेरा एक आध दो सवाल है। आइए जी महाराज, अभी आपने सतीश विक साहब को ये बताया कि ध्यान करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट पे भी ध्यान किया जा सकता है, ना इधर ना उधर। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो कोई पॉइंट तो होगा ना जिस पे हम ध्यान करेंगे, अदरवाइज क्या कहा? एब्स्ट्रैक्ट चीज ध्यान काय पे करेगा? आपने बताया कि योग में लिखा हुआ है कि वो न तो वेदांत से अलग है योग,
योग वेदांत से अलग है। वेदांत में जो हाँ। बताया, हाँ, और योग ईश्वर को नहीं मानता है। हाँ हाँ, तो मानता है। हाँ, वो आगे लिखा है मानता है योग। हाँ, ये तो ऐसा है ना कि ईश्वर योग का ईश्वर जो है वो दूसरे प्रकार का ईश्वर है, वो हाँ। जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर नहीं है। नहीं है, बराबर। अच्छा, आप प्रश्न कीजिए, क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान करने के लिए यदि कोई ईश्वर के बिंदु पे ध्यान नहीं किया जा सकता, नहीं करते हैं, तो हम ध्यान काय पे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट आपने कहा नहीं तो उसमें ईश्वर का बताया ना, अलग अलग प्रकार का ईश्वर का वर्णन किया। उस ऐसे व्यक्ति का ध्यान करो जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होवे, अज्ञान नहीं होवे, अहंकार नहीं होवे, समझे ना? ये हुआ क्लेश कर्म विपाक, उसमें कर्म फल नहीं होगा, कर्म के संस्कार नहीं होंगे। ये हुआ ईश्वर का वर्णन पातंजल योग सूत्र में। हाँ, पर वो कौन है? वो कौन है? कृष्ण नहीं हो सकता, राम नहीं हो सकता, सब में वो सब सुनो, वो सबका गुरु है। हाँ, बराबर। में भी गुरु, उसमें सर्वज्ञ है, सब ज्ञान है। ये हो गया एक वर्णन। नहीं, पर जब हम ध्यान करने बैठेंगे, इन्होंने लिखा है वहां उससे केवल नित्य मुक्त गुरुओं के भी गुरु पुरुष विशेष कहा गया है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब तो उसका ध्यान करो। आपका प्रश्न है कि रूप नहीं होगा तो कैसे ध्यान होगा, यही है ना? यही प्रश्न है कि ध्यान क्या किसका करें? यानी नहीं, ठीक है, फिर तब योग की बात मत लाओ यहाँ पे। ओके, जी जी, बराबर। आपका वैष्णव धर्म में बहुत सारे भगवान के रूप हैं। वो बांसुरी वाले कृष्ण हैं और सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण हैं। जो तुमको अच्छा लगे कृष्ण को ध्यान करो, उसमें क्या दिक्कत? यानी ध्यान करना के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। ये नहीं, ऐसा है कि जो लोग निर्गुण साकार ध्यान के बिना नहीं चलता, उनके लिए है। ओके। लेकिन बहुत से लोग हैं वो निराकार का ही ध्यान करते हैं। हाँ, तो निराकार का कैसे किया जाता है? ये एकेडमिक क्वेश्चन है, क्यों चिंता करते हो उसके? ओके जी महाराज। अच्छा, अब हमको तो हमारे गुरु ने यही कहा था जी। हमको कहा कि अपने परमात्मा का ध्यान करो। अच्छा जी जी, बस खत्म। परमात्मा क्या है? जी, सर्वव्यापी भगवान का ध्यान करो। हाँ, तब जैसे समुद्र है वैसा ध्यान करो, जैसे प्रकाश चारों ओर है वैसा ध्यान करो, यदि आकाश सर्वव्यापी है ऐसा ध्यान करो। तो ऐसा क्यों कहते हो कि ध्यान ऐसा नहीं हो सकता? तुम नहीं कर सकते, ये बात एक अलग होती है। आकाश पे ध्यान ये रूप हो गया महाराज। मेरा ये कहना है कि आकाश पे बहुत सारे लोग हैं वैसे ध्यान करते हैं। हाँ, नहीं, मेरा ये पूछना था कि आकाश पर ध्यान करो, समुद्र पर ध्यान करो, तो अगेन देयर इज समथिंग जिसपे हम ध्यान कर रहे हैं। नहीं, तो डिस्टेंस तो होगा तो सही। कॉन्शियसनेस ऐसा है कि थोड़ा सा ध्यान होगा ही, ये जरूर है। ये मेरा पूछना का सवाल था। वो होगा यदि यथेष्ट होगा, डेफिनेटली होगा। बस एक सवाल ये था। अच्छा, अब मेरे दो सवाल और थे, आपकी इजाजत से पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलिए पूछिए। What type of tapasya our ancient sages are doing? Are they शारीरिक, सात्विक और मानसिक और आध्यात्मिक? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेज 53 पे। क्या लिखा है? ये तपस्या 3 प्रकार की होती है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है कि थ्रू तपस्या वाज बोर्न द यूनिटी। मेरा ये सवाल है कि तपस्या 3 प्रकार की होती है या तपस्या एक प्रकार की होती है? सात्विक, मानसिक और शारीरिक। ठीक है। हाँ, बराबर है। तीनों प्रकार की तपस्या होती है। और आध्यात्मिक उसमें सर्वोत्तम है। नहीं, वो ऐसा है कि ये तपस्या 3 प्रकार की होती है, गीता में उसका वर्णन है जी। तो जो राक्षस लोग थे ना, वो भी तपस्या करते थे। देवता लोग भी करते थे जी। और ऋषि लोग भी करते थे। इनकी अलग, सबकी अलग अलग तपस्या हो करती थी। ओके जी।
अलग अलग तपस्या हुआ करती थी। बराबर जी महाराज। वो जो देवता लोग भी तो बहुत करते थे ना, रावण ने कैसी तपस्या की। बराबर बिल्कुल। तो फिर तामसिक। तुम्हारा प्रश्न क्या है? ये तो 3 प्रकार की तपस्या होती है, 3 अलग अलग प्रकार के लोग जो अच्छा है वैसे करते हैं। पर अल्टीमेट एम ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें आध्यात्मिक तपस्या करना पड़ती है, जबकि रावण ने भी वही करी थी, लेकिन कहा नहीं वो नहीं नहीं, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए थोड़ी करनी थी उसको। वो तो ईश्वर से प्राप्त करना था, ब्रह्मा को प्राप्त करके वर प्राप्त करना था। अच्छा। तो कहाँ तुम ईश्वर प्राप्ति की बात कर रहे हो? 90% तपस्या होती है सांसारिक उन्नति के लिए। यस। तामसिक है। हाँ, 90% तपस्या सांसारिक उन्नति के लिए होती है। कहाँ आध्यात्मिक बात कर रहे हो? अरे क्या मिलेगा अध्यात्म में? कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। अध्यात्म अध्यात्म कर रहे हो। यस जी। न माया मिली न राम, इतनी बीच में तपस्या की न भगवान मिले और संसार हमारा दूर हो गया, ऐसा हो जाएगा। जी महाराज। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये था, आर ऑल वेदास, स्मृतिज एंड श्रुतिज एंड अदर एंशिएंट राइटिंग्स आर रियली रिटन बाय आवर एंशिएंट सेजेस और ऑल आर क्रिएशन ऑफ वन पुरुष और प्रकृति? क्या 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 क्या? महाराज, ये जितने पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं, वेदांत, स्मृति, श्रुति, ये जो ग्रंथ किसने लिखे? या प्रकृति ने लिखे हैं या किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं? नहीं नहीं, वो जो ईश्वर ने, ये तो ऋषियों ने लिखे हैं। नहीं, क्या समझा नहीं तुम्हारा प्रश्न? नहीं, मेरा क्या सवाल प्रश्न ये है ये है, तुम्हारा? मेरा सवाल ये है कि जितने ये बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ग्रंथ वास्तव में किसी द्वारा लिखे गए हैं या ये ईश्वर द्वारा दिए गए हैं? देखो जी देखो जी। श्री रामकृष्ण वचनामृत है ना? हाँ बराबर। ये मास्टर महाशय ने रिकॉर्ड किया है। हाँ बराबर। यस। तो उसके रचयिता कौन है? मास्टर महाशय हुए नहीं कि ठाकुर हुए? ठाकुर हुए, ठाकुर हुए। बस ऐसी बात है। ओ। ऋषि लोगों को, हाँ, ऋषि लोगों को प्राप्त हुआ, परमात्मा से प्राप्त हुआ। हाँ जी जी। और उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया, शिष्यों ने रिकॉर्ड कर दिया। ओके, ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। महाराज जी एक चीज पूछो महाराज जी। अरे दिलीप भाई को तो शांत होने दो, तो उसके पहले इसी सिलसिले में देवाशीष आ रहे तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, इसी सिलसिले में। हाँ दिलीप भाई, और एक क्वेश्चन कर लो। अच्छा हाँ, when originally every person is sattvic, then how ignorance is crept in? जो पेज 53 पे लिखा हुआ है, according to both the systems, the self in its real nature is pure consciousness, infinite and eternal, but owing to ignorance it identifies itself with the mind and the body. जब ये खुद लिख रहे हैं कि वो सात्विक नहीं बोला, वहां पे प्योर कॉन्शियसनेस बोला है, सात्विक नहीं बोला है जी। वो सात्विक मत लाना है, सात्विक तामसिक राजसिक से अलग चीज है वो। हाँ, तो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर अज्ञान हो गया, इसके चक्कर में फंस गए। अज्ञान के कारण चक्कर में फंस गए। अब महाराज जी एक ऑफ द ट्रैक पर इससे लगा हुआ सवाल ये है कि प्योर कॉन्शियसनेस और ये सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? अरे वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है और आप पा ही नहीं सकोगे। अभी सात्विक राजसिक तामसिक पे ही हम रहते हैं। हाँ, हमारे इसके पीछे जो है, हम जैसे सो गए थे जी, सोते हैं जब तमोगुण आ जाता है, तम आ गया ना। हाँ, सोते समय तम आ गया जी, लेकिन उठते हैं तब कहते हैं मैं अच्छा सोया था। हाँ, तो उठने पर पता चलता है कि मैं था वहां पर। हाँ,
तो तमोगुण के अंदर भी मैं था, सोते हुए भी मैं था, दैट इज कॉन्शियसनेस। अच्छा, तुरीय और प्योर कॉन्शियसनेस में क्या फर्क फिर? है तुरीय और प्योर हाँ, कॉन्शियसनेस में क्या फर्क? हाँ, प्योर कॉन्शियसनेस है, तुरिया इज सेम। ओके, बस जी महाराज जी, ये मेरा जी। अच्छा, देवाशीष बोलो क्या है? महाराज जी प्रणाम। ये जो ऋषिज लोग थ्रू मेडिटेशन दे हैव लर्न द सीक्रेट ऑफ और everything that is what we get in this passage. Now, do these rishis or the seers of truth had their gurus? Because guru बिना तो कुछ होता नहीं है। तो ये जो ऋषिस का कुछ गुरु होते थे क्या? तो अपने मेडिटेट तो करते हैं, लेकिन गुरु जब तक माने अपना इग्नोरेंस नहीं रिमूव करते, बोल देता है, तब तो नहीं होता है कुछ ना। ये लोग का कोई गुरु थे क्या? अच्छा, जो गुरु होंगे ना, उनके भी तो कोई गुरु होंगे। हाँ हाँ, उनका भी कोई गुरु होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ होंगे। और उनके भी कोई। तो आखिर में विष्णु जी आ गए ना। तो आप ये अपने क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो कि आप क्वेश्चन में फंसे हुए। अरे आपके गुरु थे ना। हाँ हाँ। अब आप स्वयं ऋषि तपस्या करके ऋषि बनिए। अच्छा अच्छा। और डायरेक्ट रियलाइजेशन कीजिए। आप खुद ऋषि बनिए ना। अच्छा, थैंक यू महाराज जी। हाँ, अंडरस्टूड। महाराज जी एक सवाल मेरा रह गया जो मैंने आपको लिखा नहीं था, लेकिन मेरे कॉपी में लिखा हुआ था। मैं कर लूं? अभी कर सकता हूँ? हाँ, ये वो अच्छा, we see Swami Yatishwarananda talking in this article as why the West is unable to worship women as a divine godhead. West की बात कर रहे हैं, and hence their behavior towards them remains as an object of senses. ऐसे बोलते हैं वो। But मैं ये कहता हूँ महाराज जी, but in India also, in a male-dominated society, the trend to dominate and ill-treat women is seen both in urban and rural areas. They talk of divinity and motherhood of God outside, but at home, the wives and daughters are treated so differently. So how different are then we to the West? West से हम लोग अलग कैसे हैं? In fact, today the West seems to respect women lot more than even us. Yes, see, that is the thing. It is unfortunate that women may be maltreated. यानी माँ भी जो है ना, उसको खाने को नहीं मिलेगा। लड़का पेट भर के खाएगा, माँ को खाने को नहीं मिलेगा जी। लेकिन माँ के प्रति उस काम भाव तो नहीं है ना जी। वेस्ट में women are in a very good condition. जी जी, एग्जैक्टली। They are educated, सारे काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद को सब वेस्ट में विमेन नहीं किया था। जी और जी। स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो तो स्वामी विवेकानंद बड़े कितनी प्रशंसा करते थे विमेन की। जी जी, एग्जैक्टली। लेकिन their attitude about women in general, it is physical. Okay. Not like mother, divine mother. जी जी। हमारे यहाँ पे क्या है कि we consider it manifestation of mother. लेकिन फिजिकल कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं है उनको। भाई कम से कम खाना पीना तो होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। दैट इज द थिंग। जी जी जी, दैट इज द डिफरेंस। और इसलिए विमेन के लिए करना चाहिए, रिपीटेड करना चाहिए। हमारा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन विमेन को खाने पीने को दो रहे, रहने के लिए तो कपड़ा मकान अच्छी तरह दो तो सही। जी जी, राइट महाराज। ठीक है महाराज। इज इट ओके? यस महाराज, अंडरस्टूड महाराज। प्रणाम महाराज। और कोई क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन? और ये इतु नहीं आई। इतु इज नॉट जॉइन, सो वी शुड स्टॉप। महाराज शांति मंत्र। हाँ। ओम शांति हरि ओम।